Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. We have been started with our unit number 2. In that we have learned about the planning premises, its pros, its advantages and limitation. And today we are going to learn the components of internal and external environment. जो हम assumption कर रहे हैं हमारी प्रीमाइसेस को बिल्ड करने के लिए, तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा assumption बनता है. तो वो कंपोनेंट्स कौन से हैं इंटरनल प्रीमाइसेस के लिए और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस के लिए, वो हम समझेंगे. अभी इंटरनल प्रीमाइसेस जो है वो आपको पता है कि प्रीमाइसेस और assumption within the organization, it's considered to be an internal premises. Now you will learn the various components of the internal premises. So first one is that sales forecast. Now we know that sales forecast is a projection of your future sales by a product, future sales of the product. Sale forecast is nothing but a projection of a future sales of a product and a price for number of months or a year. आप बहुत सारे months के लिए, बहुत सारे साल के लिए आप projection कर रहे हो आपके future sales of product का और उसका price का, उसको हम बोलेंगे sale forecast. और उसी के बेस में हम ये estimate करते हैं कि what can be an accurate profit or a cash flow which can be made. So, sale forecast being an internal premises where we have a projection of a future sales of the product and a price for the number of years and the months. और उसके बेस में we will have an estimate of profit and a cash flow which we are going to make. That is your first premises assumption. That is your first components of your internal premises. Second internal premises component is capital investment. It is very necessary that business manager frame the plans to ensure the best use of the fixed asset. मैनेजर को, बिजनेस के मैनेजर को ये जरूरी होता है कि जो वो प्लान फ्रेम कर रहा है उससे वो मैक्सिमम यूज कर सकता है फिक्स एसेट का. मैनेजर शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव अ कॉम्परेटिव इवोल्यूशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट. जितने भी इन्वेस्टमेंट के स्कीम्स हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव स्कीम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो हर एक ऑल्टरनेटिव्स को उसको कंपेयर करना चाहिए एंड देन ही नीड टू select the best investment. So your manager should also be taken into consider that which are the source of capital, so that the best source of capital plus your best investment can be selected. That is your capital investment. So where your business manager need to forecast the various alternative schemes of investment, need to consider investment has a source of capital. That will be a second component of your internal premises, that is capital investment. Third one, supply of raw material and parts. As a business manager, you need to assume whether your material and parts would be produced internally or they must be brought from outside. आप बिजनेस के मैनेजर हैं, आपको अज्यूम करना होगा कि मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही बने कि आप बाहर से मंगवाए. द मैनेजर मस्ट बी क्लियरली डिसाइड इन एडवांस विच पॉलिसी ही नीड टू अडॉप्टेड टू एक्वायर द मटेरियल एंड पार्ट्स. So that is also an assumption of your internal premises. That is your components of internal premises. Next one is development of unit. The planning must also be taken into account for the development of business unit. तो आपको इसके लिए अज्यूम करना होगा कि आपके यूनिट को कैसे आप डेवलप कर सकते हो. जो बिजनेस यूनिट आपने स्मॉल स्केल में स्टार्ट किया है वो फ्यूचर में डेवलप होगा कि नहीं, उसका भी अजम्पशन, उसका भी प्रीमाइसेस आपको बिल्ड करना होगा. सो दिस फोर आर कंसीडर्ड टू बी अ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल प्रीमाइसेस. सेल फोरकास्ट में यू विल फोरकास्ट ऑफ योर प्रोडक्ट सेल्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ्स. उसके बेस में आप प्रॉफिट और कैश फ्लो डिसाइड कर सकते हो. कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यू विल हैव द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव स्कीम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. जिससे आप प्लान जो प्रिपेयर कर रहे हैं इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बेस्ट यूज ऑफ फिक्स एसेट हो.
सप्लाई मटेरियल पार्ट्स में एज अ मैनेजर यू नीड टू डिसाइड कि आपको रॉ मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके कंपनी में ही बनाना है कि आपको बाहर से मंगवाना है। तो ये जो पॉलिसी है वो आपको कौन सी एडॉप्ट करनी है टू एक्वायर योर मटीरियल एंड पार्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ यूनिट में जैसे हमें प्लानिंग करनी होती है कि मेरी देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट, तो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल में आपका यूनिट स्टार्ट हुआ है वो फ्यूचर में डेवलप हो सकता है कि नहीं, उसका भी आपको अजम्पशन यहाँ पे करना होगा। सो दिस ऑल आर योर ऑल these are your internal premises: sale forecast, sale forecast, capital investment, supply of material and parts, and development of unit. Now the another part, that is your external premises. We know very well external premises are the premises which are outside the organization. Now various components of the external premises. First one is political stability. Now if your political stability is maintained for longer period of time, planning can be facilitated. Or if there is a political instability on other hand, then forecasting will be difficult, because आपका यहाँ पे क्या पॉलिटिकल के कारण आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आपको ये अज्यूम करना है कि वेदर आपका पॉलिटिकल स्टेबल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, वेदर वो आपका पॉलिटिकल स्टेबल इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल में तो फोरकास्टिंग करना डिफिकल्ट होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो यू कैन हैव योर प्लानिंग टू बी फैसिलिटेड। और दूसरे हाथ में देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इट विल मेक योर फोरकास्टिंग डिफिकल्ट एंड देयरफॉर इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द प्लानिंग प्रीमाइसेस। आपके एरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप इजीली अज्यूम नहीं कर सकते, आपको नहीं पता होगा कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण आपको बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, सेकेंड वन, गवर्नमेंट कंट्रोल मस्ट बी कंसिडर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीमाइसेस फॉर प्लानिंग, बिकॉज द डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल टोटली किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ बिजनेस में। गवर्नमेंट मे इम्पोज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन ईटेबल प्रोडक्ट बिकॉज टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक। आप देखोगे कि नेचर ऑफ बिजनेस पे आपका गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो डिपेंड होगा। आपका बिजनेस ईटेबल प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, ठीक है, तब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा आपको इम्पोज कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक की हेल्थ को सेफगार्ड करना है। थर्ड वन इज पॉपुलेशन ट्रेंड। अभी हैज अ स्टडी ऑफ population trend which is very useful for projecting the market demand। population trend को समझना और study करना वो एक important part है, useful है, because we need to project the market demand। You need to estimate the population trend which is going to cover into 10 to 20 years through your difficult, because it will serve you as a useful premises for the longer planning। आपको 10 to 20 years का population कितना है, 25 to 30 का population, 20 to 35 ईयर्स वाले में कितना पॉपुलेशन है वो आपको एस्टिमेट करना होगा। तो उसके बेस में आप अपना प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये अजम्पशन करना जरूरी होगा जस्ट टू हैव प्रोजेक्शन फॉर योर मार्केट डिमांड। Next one is price level. The business manager must always assume the future price level because it will influence the market demand for his product। तो business manager को ये forecast करना जरूरी होता है कि उसका future price level क्या होगा, because वही चीज उसके market demand, उसकी product की market demand को influence कर सकता है। Next is technology change। We know that it is necessary for business manager to take a close look at the technology environment because technology changes रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज कौन सा होने वाला है फ्यूचर में, उसको उसके बारे में भी अज्यूम करना होगा, अजम्पशन डालना होगा, फोरकास्ट करना होगा, बिकॉज उसी हिसाब से उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। तो कंटिन्यूस यू नीड टू हैव अ प्रीमाइसेस, कंटिन्यूस यू नीड टू हैव अ अजम्पशन फॉर हिज टेक्नोलॉजी चेंज ऑल्सो। सोशल रिवोल्यूशन। We know that business is affected by social change, as a change in a trade union,
adult education program, student agitation, which create a serious changes in the society also, and this change can have influence on the business. The social revolution में consumer taste and preference, adult का education, students का agitation, ये सारी चीज आपके सोसाइटी को चेंज कर सकता है और वही चेंज जो है आपके बिजनेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो ये सोशल रिवोल्यूशन के ऊपर भी आपको फोरकास्ट करना होगा, आपको एस्टिमेट करना होगा, आपको अज्यूम करना होगा. सो दिस ऑल आर योर एक्सटर्नल प्रीमाइसेस components where you need to forecast, you need to assume, you need to premises about these components. So just go through the video and learn about the components of internal and external premises. Thank you students for listening.